Hello students, now today in this lecture we will discuss about area and volume. First of all we will start from definition of area. Area is the region, okay, within a closed boundary in a two dimensional space. मतलब ये कि अगर हम एक टू डायमेंशनल स्पेस की बात करें उसमें कुछ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और उसको आपस में अगर हम ज्वाइन करें तो जो भी कवर्ड रीजन होगा वो एक्चुअली क्या उसका रीजन जो कवर्ड रीजन होगा वो एक्चुअली वो क्या होगा एरिया ही होगा. फॉर एग्जांपल इफ वी सेलेक्ट 4 पॉइंट्स इन दिस प्लेन in this space to this space. Now after dividing these points we have shape of square and this is covered region and this covered region is known as area. Okay, now for all two dimensional diagrams the area can be determined. Okay, we can determine area of triangle, area of square, area of rectangle, area of circle. Now what is SI unit? SI unit of area is square meter and we can write meter square. Okay, area of CGS unit of area square centimeter, we can write centimeter square. Now 1 meter square, 1 square meter equals 1 meter into 1 meter. Now we have 100 centimeter in 1 meter, then we can write 100 centimeter into 100 centimeter. Now we have 10,000 square centimeter. Okay, it means 1 square meter equals 10,000 square centimeter. Similarly 1 square centimeter equals 100 square millimeter. Now next, what is formula for area of triangle, area of square, area of rectangle and circle? Students, first of all we will draw diagram of triangle. This is triangle and this is base of triangle and this is height of triangle. So in this case half of base into height, this is area of triangle. But in case of equilateral triangle we can calculate area with a different formula. Okay, now in case of square, square means okay, a quadrilateral which have 4 equal sides known as square. If side of this square is A, so side A is equal in all cases. Now in case of square, area will be side square, so we can write A square. Now in case of rectangle, this is rectangle, length, breadth. Okay, this side equal to this side and this side is equal to this side. Now area of rectangle will be length into breadth, and in case of circle, this is circle and this is center of circle and this is radius of circle. So we can calculate area of circle by using this formula pi r square, where pi is 3.14 or 22 by 7. Okay, this is value of pi. Now what do we mean by the term volume? Students, volume is the space occupied by an object. मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है एक्चुअली वही क्या है, वॉल्यूम है. 2D था, जो रीजन कवर कर रहा है एरिया है. अब वो 3D हो जाएगा बिकॉज
वी हैव 3 कोऑर्डिनेट x y z, लेंथ ब्रेथ हाइट। अगर वो तीनों इंक्लूड हो जाता है तो वो फिर क्या होगा, वो वॉल्यूम में आ जाएगा। एनी 3 डायमेंशनल बॉडी विल हैव अ वॉल्यूम। कोई भी बॉडी जो 3D है तो वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम, इससे हम फाइंड कर सकते हैं ना। वॉल्यूम इज रिलेटेड टू कैपेसिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, अगर वो 1 लीटर का कंटेनर है तो उसका जो कैपेसिटी है वो क्या 1 लीटर है। और अगर उसमें हम कोई भी लिक्विड लेते हैं, मिल्क, ऑयल या जो भी चीज़ उसमें लेते हैं, कोई भी लिक्विड लेते हैं, अगर वो पूरी तरह से फिल किया गया है तो इसके कंडीशन में देखेंगे कि जो भी इसका वॉल्यूम होगा, एक्चुअली इसका कैपेसिटी 1 लीटर था। अब जिस इसमें लिक्विड हैं उनका जो वॉल्यूम होगा वो भी 1 लीटर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हो कि वॉल्यूम इज आल्सो रिलेटेड टू कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम? स्टूडेंट, SI unit of volume is cubic meter, okay, and we can write meter cube. CGS unit of volume is cubic centimeter. We can also write CC, cubic centimeter, okay. Now, volume of liquids and gases are measured in liter and milliliter. मतलब ये कि वॉल्यूम को हम लीटर मिलीलीटर में भी हम मेजर कर सकते हैं अगर वो लिक्विड है, गैस है, जो भी। Now we have a relation between meter and milliliter, meter and liter. 1 cubic meter equals 1000 liter. 1 liter equals 1000 cubic centimeter. 1 milliliter equals 1 cubic centimeter, or we can also write 1 cc. ये कुछ कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, हो सकता है कि किसी न्यूमेरिकल में इसका यूज हो जाए, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम ऑफ गिवन शेप्स, क्यूबाइड, क्यूब, स्फीयर, कोन, सिलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें क्यूबाइड की, ये जो रेक्टेंगल है, अगर इसमें लेंथ और ब्रेथ है तो कहीं से अगर हमको थिकनेस, हाइट जो भी कर सकते हो, अगर वो भी मालूम चल जाए तो फिर हम इजीली हम वो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होगा वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है V इक्वल्स LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दिस फॉर्मूला गिव्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ओके। नाउ क्यूब, अब क्यूब है, अगर हम बात करें स्क्वायर की, इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर ऑफ सेम साइड, सेम लेंथ। अगर स्क्वायर में सारे साइड सेम लेंथ का है तो उसमें से अगर हम लेंथ ब्रेथ की बात करें, जो भी सब सेम ही है, तो उसमें कहीं से अगर उसमें थिकनेस भी आ जाता है, हाइट भी इंक्लूड हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ सेम होगा। इन दिस केस वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A इंटू ए एंड वी कैन राइट ए क्यूब, ओके। नाउ व्हाट इज स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 4/3 pi r cube, okay, 4/3 pi r cube। कुछ सर्कल की तरह होगा, बट सर्कल के केस में क्या है कि रेडियस की जो लेंथ होगी वो हर जगह सेम होगा, बट स्फीयर में ऐसा नहीं है, राउंड शेप में होता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्फीयर वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम बाय यूजिंग फार्मूला 4/3 pi r cube। Now cone, this is cone, okay, and in case of cone this is cone, okay, shape of cone। now अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो ये होगा 1/3 pi r square h, ओके। V इक्वल्स 1/3 pi r square
h. Now the portion of this portion of cone is just like circle. अब ये सर्कल की तरह है, तो इसमें एक रेडियस होगा. एक्चुअली यही क्या है, r की वैल्यू वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं. एंड हाइट ऑफ कोन दिस इज h. So we can calculate volume of cone 1/3 pi r square h. Now in case of cylinder, ये कुछ सिलेंडर है. ये सिलेंडर का जो डायग्राम है, इसमें आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये पोर्शन जो होगा वो सर्कल की तरह होगा. अगर हम एक कोई रॉड हो, ठीक है, पाइप हो, अगर उसको हम कट करते हैं तो देखते हैं दोनों तरफ जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो एक तरफ देखेंगे तो बिल्कुल एक सर्कल का फॉर्म होगा, एक बिल्कुल सर्कल की तरह होगा. तो उस केस में हम अगर वहाँ से देखें तो वहाँ से हमको यहाँ से रेडियस मिल जाना है, और दूसरा इसमें यूज होने वाला है लेंथ ऑफ सिलेंडर, एंड दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस. सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r square l. This is r, this is l. So volume of cuboid lbh, volume of cube a cube, volume of sphere 4/3 pi r cube, and volume of cone 1/3 pi r square h, and in last volume of cylinder pi r square l. So using this formula we can calculate volume of some diagrams, okay, some objects, and using this formula we can calculate area of some objects. Okay, thank you.